Now we have taken last time force on a charge moving in magnetic field. F is equal to QVB sin theta. If charge particle is moving in magnetic field, it will experience force, and direction of force given by Fleming's left hand rule: magnetic field, flow of positive charge, and the force. Then radius of circular path came to be mv upon qb, and the time period 2 pi m upon qb. Now one question, write down. This figure is given to you. This is electron moving with velocity 10 to the power 6 meter per second. This point is A, this point is B. This is semicircle. और ये जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर. Question, write down. Find first part, the direction and magnitude of magnetic field due to which the electron will go from A to B on the semicircular path given in the figure. And second part, time taken by the electron in going from A to B. How much time it will take, and what should be the magnitude and direction of magnetic field so that electron goes from A to B. Yes, you can try this question. Try it. What information is given in this question? One thing is velocity given, charge given, electron, and this semicircle diameter is given. So radius you have 5 centimeter, and magnetic field you have to find. In magnetic field, charge moves in circular path और उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी है. तो R is equal to, अच्छा, mass of electron will also be given. Mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 kg. In the question or in the beginning or at the last of the paper, you will be given mass of the electron. From there you have to collect the mass. This is mass given. So you apply R is equal to mv upon qb. Radius 5 centimeter, make it in meter. Mass 9.1 into 10 power minus 31. Velocity 10 to the power 6. Charge of electron. And field you have to find. And you will solve it. And the field you will be getting 1.12 into 10 power minus 3 टेस्ला. अब इस फील्ड का
डायरेक्शन बताओ। फील्ड तो ये आ गई, अब फील्ड का डायरेक्शन बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? सर इनवर्ट। नाउ फोर्स इज अपवर्ड, तो थंब तो अपवर्ड कर दो। सॉरी, दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ, और फोर्स हमेशा सर्किल के सेंटर पे होता है, तो फोर्स का तो ये डायरेक्शन वी हैव डिसाइडेड, फोर्स विल बी दिस साइड, तो फोर्स तो इस साइड हो गया। अब रही वेलोसिटी की बात, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर नीचे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। आ रही है आवाज? हेलो हेलो, now what is the position? Audible or not? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Sir, Yes. sir, हाँ, सर ये मैग्नेटिक फील्ड में सर 10 to the power -4 आ रहा है। 10 to the power -4। हाँ सर। फिर से करके सर, देख लो। हमारा नहीं आ पा- ये 5 into 10 power -2, ये सही है 10 to the power, सॉरी, हाँ 10 to power -4। Actually in the question it is given 10 power 7 velocity, so it will be coming 10 power -4. Now charge is moving in circular path and the force is always towards the center, तो force तो center की ओर कर दो, तो फोर्स सेंटर में आ गया, थंब सेंटर की तरफ हो गया, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपवर्ड, तो मिडिल फिंगर डाउनवर्ड कर दो, मिडिल फिंगर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, फोर्स इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर एंड फील्ड कमिंग इनवर्ड, so direction of magnetic field will be inward. So here you will apply inward magnetic field, then charge will go from A to B along this semicircular path. Then second part में you have to find the time period. तो यहां पे टाइम पीरियड सेमी सर्किल का लोगे, और सेमी सर्किल के लिए हो जाएगा पाई एम अपॉन क्यूबी, क्योंकि फॉर कंप्लीट सर्किल इट इज 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। पूरे सर्किल का तो होता है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, और हाफ सर्किल के लिए हाफ हो जाएगा टाइम, तो ये सर्किल के टाइम का हाफ ले लोगे, तो पाई इज 3.14, मास इज 9.1 इंटू 10 पावर -31, चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, और B की वैल्यू 1.12 इंटू 10 पावर -4। सॉल्व कर दो, you will get the time period. Time taken to go from A to B, 1.57 into 10 to the power -8 seconds. This is the time taken by electron to go from A to B. सर -7 होगा। -8 होगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कोई भी वैल्यू हम ले लें, टाइम पीरियड यही आएगा।
टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, तो यही आंसर आएगा इस बार। Any problem? Next question. A proton, comma deuteron and an alpha particle. Proton, deuteron and an alpha particle. Proton, deuteron and an alpha particle whose kinetic energies are same, comma interperpendicularly a magnetic field. Compare radii of their circular path. Compare radii of their circular path. Try this question now. Proton, deuteron and an alpha particle enter with same kinetic energy. What will be the ratio of their radii? First select the formula which you want to apply in this question. पहले वो फॉर्मूला सेलेक्ट करो जो यहां पे लगाना बेटर होगा। गो थ्रू द फॉर्मूला फॉर रेडियाई। रेडियाई के जो हमने फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों को चेक करो एंड डिसाइड विच फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग हियर, क्योंकि हमने रेडियस के कई फॉर्मूले बताए हैं तुम्हें, और देखो उनमें कौन सा यहां पे एप्लीकेबल होगा इन बेटर वे। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी सेम बताई है सर, √2m/ke/qb वाला। यस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसने सेम बताई है तो इट विल बी बेटर टू अप्लाई दिस फॉर्मूला फॉर रेडियस √2mke/qb, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी सबके लिए। अब आते हैं, रही बात मास की और चार्ज की। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास अलग अलग होंगे और चार्ज अलग अलग होंगे। चलो पहले चार्ज डिसाइड करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज अगर Q ले लो तो ड्यूट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन होता है 1h1, ड्यूट्रॉन होता है 1h2 और अल्फा पार्टिकल होता है 2he4। ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, तो इसका भी चार्ज Q होगा। प्रोटॉन का चार्ज Q, ड्यूट्रॉन में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज तो एक ही प्रोटॉन का चार्ज Q, और अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तो 2Q चार्ज होगा। और मास की अगर बात करें, प्रोटॉन का मास अगर m लोगे तो ड्यूट्रॉन का 2 हो जाएगा 2m, और अल्फा का मास हो जाएगा 4m। अब आ जाओ, रेडियस ऑफ प्रोटॉन के लिए लिखते हैं फॉर्मूला। रेडियस ऑफ प्रोटॉन √2m
के ई, चार्ज क्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी। ड्यूट्रॉन का रेडियस हो जाएगा √2 और मास इसका है 2m और काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज क्यू बी, और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा √2, मास 4m, काइनेटिक एनर्जी सेम, चार्ज 2q, मैग्नेटिक फील्ड भी। ये हो गया सबके लिए। अब इनको डिवाइड कर दो, चाहे तो दो को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएंगे। 1 को 2 से डिवाइड करो तो Rp अपॉन Rd 2m के ई अपॉन QB, और ये हो जाएगा QB अपॉन 4m के ई। के ई कैंसिल कर दो, mm कैंसिल कर दो, QB कैंसिल कर दो, ये अंडर रूट केवल यहीं तक है। तो Rp अपॉन Rd 1 अपॉन √2, तो Rd इज इक्वल टू √2 Rp। ये रिलेशन हो गया। इसी तरह 2, 3 को डिवाइड कर दो तो इनका रेशियो आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व होगा ये। Then next heading write down force। आरडी और आर अल्फा भी डिवाइड करना होगा ना क्या चीज? सर? आरडी और आर अल्फा को भी डिवाइड करना हाँ, होगा। इनको भी डिवाइड कर दो, रिलेशन क्लियर आ जाएंगे सबके। सेम प्रोसेस से कर लेना, राइट। हम आंसर बता दे रहे हैं इनके क्या क्या आएंगे। Rd इज √2 Rp आएगा, और R अल्फा विल बी इक्वल टू Rp, और तीसरा रिलेशन आएगा Rd इज इक्वल टू √2 R अल्फा। सर 1, 2 को डिवाइड किया, 2, 3 को किया, 1, 3 को किया, 3 आंसर आ जाएंगे। हाँ ठीक है। सर मास कैसे लिया था, एक और बता दीजिए। देखो, प्रोटॉन जो है सिंपली इनसाइड द न्यूक्लियस एक प्रोटॉन होता है। ड्यूट्रॉन जो है 1h2 है, तो इसके अंदर ये हुआ एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तो न्यूट्रॉन आ जाता है, और 1 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 प्रोटॉन हुए, और 4 में से 2 माइनस करो, 2 न्यूट्रॉन हुए। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? मास भी आ गया है? और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है, तो अगर इसका m है तो इसका 2m है, इसका 4m। देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर in uniform magnetic field। Force on current carrying conductor, force on current carrying conductor in uniform magnetic field। जैसे अभी तक हमने क्या देखा
कि चार्ज वॉज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था तो चार्ज पे फोर्स एक्ट कर रहा था. नाउ सपोज दिस वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. वायर में करंट इज फ्लोइंग. जब करंट ऊपर फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाउनवर्ड फ्लो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा फोर्स. तो इसका मतलब कंडक्टर पे भी क्या एक्ट करेगा? फोर्स करेगा, एक्ट. करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अंदर चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन व्हेन मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट ऑन इट. सो करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी फोर्स एक्ट करेगा. नाउ दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड a straight wire carrying current I is placed. इसमें ये स्ट्रेट वायर which carries a current I is placed. A straight wire carrying current I is placed in magnetic field. Length of the conductor is L. Area of cross section of the conductor is A, and current I is flowing upward in this wire, let us suppose. A magnetic field B. तो ये स्टेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है. स्टेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है, एंड एज सून एज करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर it will experience the force as charge was experiencing the force. Now here L is length of conductor, A is area of cross section of conductor, area of cross section of conductor, N number of free electrons